हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अभी हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ते हैं 1.5। इसमें अभी रेशनल और इरेशनल को फाइंड आउट करना होगा। सो नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 1, इट इज क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। सो फर्स्ट पार्ट इज गिवन टू अस, दिस इज 2 minus root 5. So this can be root 5 is equals to, this is 2.2360679. So on subtracting 2 minus 2.2360679, we will get, this is minus 0.2360679. So it will be negative. Now see that this is irrational number, this is not the rational, so this is irrational. So this is irrational. Now coming to the second part, this is 3 plus root 23 and minus root 23. So bracket open करते हैं, this is 3 plus root 23 minus root 23. 23 cancel, so this is 3. Now 3 is rational number. So this is rational. Coming to the third part, it is 2 root 7 divided by 7 root 7. So root 7 cancels, so this is 2 by 7. So 2 by 7 is a rational number. So this is a rational number. Now coming to the fourth part, this is 1 by root 2. So on decimal expression it will be 0.7071067811. So this is again irrational. So this is irrational. Now coming to the fifth part of this, it is 2 pi. So pi is always irrational. So irrational multiplied by any number will be irrational itself. So this is irrational. So coming to question number 2, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस. अभी सिंप्लीफाई करना है इनको, तो कॉम्बिनेशन दिया हुआ अभी हमें रेशनल और इरेशनल का. दिस इज 3 प्लस रूट 3 एंड दिस इज 2 प्लस रूट 2. अभी हम क्या करेंगे, पहले 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे ब्रैकेट में, 2 प्लस रूट 2, और फिर रूट 3 का मल्टीप्लाई करेंगे पूरे ब्रैकेट में, 2 प्लस रूट 2. सो दिस विल बी 6 प्लस 3 रूट 2. ये 3 का मल्टीप्लीकेशन कभी रूट के अंदर भी नहीं होगा, ये बाहर भी रहेगा, बिकॉज वो रूट में है, ये विदाउट रूट का है. प्लस रूट 3 इंटू 2, सो दिस विल बी 2 रूट 3, प्लस रूट 3 इंटू रूट 2, सो दिस विल बी रूट 6. रूट वाले का मल्टीप्लाई हो जाएगा, रूट 3 इंटू रूट 2. अभी ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, सो जो भी प्रोडक्ट आएगा वो भी क्या होगा, रूट में होगा. 2 और 3 का प्रोडक्ट क्या आएगा, 6 को भी अभी हम क्या करेंगे, रूट में ही रखेंगे. अगर कोई जैसे ये है 2 इंटू रूट 3, ये विदाउट रूट का है, ये रूट का है, तो इनका मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू रूट का वाला रूट में, विदाउट रूट वाला विदाउट रूट में. सो इस तरह से अभी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे. सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट फॉर अस. नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, दिस इज 3 प्लस रूट 3 एंड दिस इज 3 माइनस रूट 3. So this is now a plus b, a minus b. So using a plus b, a minus b, so this will be equals to a square minus b square, a square minus b square. So a here is 3, so 3 plus root 3 and 3 minus root 3. So this will be a square, means 3 square minus root 3 whole square. So this will be 9 minus 3, so this is 6. So we got our answer as 6.
Now coming to the third part, it is root 5 plus root 2 whole square. So this is simply a plus b whole square. So this is a square plus 2ab plus b square. Similarly, root 5 plus root 2 whole square. So this will be equals to a square means root 5 whole square. Root 5 whole square plus 2 into root 5 into root 2 plus root 2 whole square. So this will be 5 plus 2 root 10 plus 2. So this will be 7 plus 2 root 10. So 7 plus 2 root 10 is the answer for us. Similarly, coming to the fourth part, this is root 5 minus root 2 and root 5 plus root 2. So this is again a plus b and a minus b. So this is a minus b into a plus b. So this is a square minus b square. Here a is root 5 and b is root 2. So we can write root 5 minus root 2 into root 5 plus root 2. So this will be a square means root 5 whole square minus b square means root 2 whole square. So this will be equals to 5 minus 2. So this is 3. So we got root 5 minus root 2 and root 5 plus root 2 is equals to 3. So now coming to question number 3. Recall that pi is defined as the ratio of the circumference, say C, and the C of its circle to the diameter d. So that is pi equals to C by d. It seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? So basically, see, there is no contradiction. So there is no contradiction because we measure only the rational values of length. बिकॉज जो भी अभी हमने डायमीटर और सरकमफ्रेंस दोनों ही क्या लेंथ ही है, लेंथ को हमेशा हमने क्या किसमें रेशनल वैल्यूज में ही मेजर किया हुआ. तो रेशनल बाई रेशनल मीन्स रेशनल नंबर डिवाइडेड बाई रेशनल नंबर विल ऑलवेज बी अ रेशनल नंबर. सो पाई इक्वल्स टू सी बाई डी. So this is the rational number and this is also a rational number, so it will always be give a rational value only. So therefore pi is irrational. So now coming to question number 4th. Represent root 9.3 on number line. रूट 9.3 को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. इसको देखिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. पहले अभी हमने एक क्या किया हुआ है, 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लो. सपोज दिस इज ए बी. पहले मैंने ए बी को 9.3 जितना दिया हुआ उसके बराबर में ड्रॉ कर लिया. उसके बाद में अभी एक 1 सेंटीमीटर के और डिस्टेंस लेकर के चलो बी टू सी. सो दिस इज 1 सेंटीमीटर. विल टेक दिस डिस्टेंस एज 1 सेंटीमीटर. दिस इज पॉइंट सी. नाउ वी कैन फर्दर एक्सटेंड इट. फर्दर एक्सटेंड किया अभी इसको. अभी हम क्या करेंगे, ये जो आया बी सी ए सी डिस्टेंस का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे. एसी डिस्टेंस का भी क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे. सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सपोज अभी ये लाइन हमारी अभी क्या ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया. सो दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस ए सी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे अभी.
और जो बी पॉइंट है यहाँ से सीधा परपेंडिकुलर लेकर जाएंगे। अभी इस रेडियस से एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। इस रेडियस से अभी हमने क्या किया हुआ है, एक ऐसे हाफ सर्किल को ड्रॉ करेंगे। सो ये हाफ सर्किल को ड्रॉ किया मैंने, ये जाकर के अभी सी पॉइंट पे टच करेगा और बी से क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है। बी से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये जिस पॉइंट पे जाकर के मीट करेगा, सो इस पॉइंट पे लेकर के अभी हमने क्या किया, ये रेडियस लेकर के एक आर्क ड्रॉ करेंगे। सो दिस इज सपोज डी पॉइंट। सो अभी ए डी पॉइंट लेकर के एक आर्क ड्रॉ करते हैं। ये वाला पॉइंट लिया और इस रेडियस से अभी एक आर्क ड्रॉ किया हुआ है। ये आर्क जिस जगह पे जाके मीट करेगा दैट विल बी रूट 9.3। सो ये अभी रूट 9.3 आ गई। एक बार क्विकली देखते हैं अभी हमने क्या किया हुआ है। पहले तो ए बी लाइन को ड्रॉ किया 9.3, फिर यहाँ से एक 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस को लिया। अब ये लाइन आ गई हमारी ए सी। ए सी का हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया और इतना रेडियस लेकर के, सपोज दिस इज पॉइंट ओ, सो ए ओ रेडियस लेकर के एक ये सेमी सर्किल ड्रॉ किया हुआ है और बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पे जाके मीट करेगा, सो इतनी अभी रेडियस से लेकर के हमने क्या किया, एक आर्क ड्रॉ किया। ये आर्क जिस पॉइंट पे जाकर के मीट करेगा दैट विल रिप्रेजेंट रूट 9.3। So now coming to question number 5th, rationalize the denominators of the following 1/√7। रेशनलाइज करना है इनके डिनोमिनेटर्स को। सो डिनोमिनेटर्स में कोई भी अभी इरेशनल टर्म नहीं आना चाहिए। रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी डिनोमिनेटर होता है उससे अभी हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही मल्टीप्लाई करोगे। सो ऑन मल्टीप्लाइंग numerator and denominator by √7। सो √7 से भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सो इट विल बी 1 × √7 डिवाइडेड बाई √7 × √7। सो दिस विल बी √7 बाई √7 × √7 इज 7। सो नाउ दिस इज द रेशनलाइज। डिनोमिनेटर भी क्या हो गया, रेशनलाइज हो गया। Similarly, coming to the second part, this is 1/√7 minus √6। So √7 minus √6 अभी हम क्या करेंगे इसमें, so on multiplying numerator and denominator by √7 प्लस √6। सो अभी इसमें क्या अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अपोजिट साइन क्या होगा, इस वाले साइन का अपोजिट। सो दिस विल बी 1/√7 माइनस √6 एंड दिस विल बी √7 प्लस √6 एंड हियर इट विल बी √7 प्लस √6। सो दिस विल बी √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाई a plus b, a minus b, so this is a square minus b square, so this is √7 whole square minus √6 whole square, so this is √7 minus plus √6 divided by 7 minus 6, so this is √7 plus √6. So this is now the denominator is rationalized because denominator is 7 minus 6 is 1. Similarly, we will take up other parts of this. So now coming to the third part. Third part is 1/√5 plus √2. So on multiplying and dividing by √5 minus √2. सो √5 माइनस 2 से अभी इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। सो दिस विल बी 1 टाइम्स √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाई √5 प्लस √2 इंटू √5 माइनस √2।
ये दो भी एक्सप्रेशन लिखेंगे, अभी इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इनको ऐसे ही विदाउट ब्रैकेट रख देते हैं, √2 इंटू √5 माइनस √2। ये एक्सप्रेशन विदाउट ब्रैकेट अगर आप लिखोगे तो गलत होगी, बिकॉज यहाँ पे अभी क्या लग रहा है कि √2 और 5 बस इन्हीं दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, जबकि यहाँ पे ये कंप्लीट एक्सप्रेशन और इस कंप्लीट एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन है। सो दोनों की मीनिंग डिफरेंट हो जा रही है, इसलिए अभी हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को और इसको भी दोनों को ही ब्रैकेट में पुटअप करेंगे हमेशा। So now the numerator is √5 minus √2 divided by, this is a plus b, a minus b, so this is a square, means this is square of √5 minus square of √2, so this is √5 minus √2 divided by 5 minus 2, so this is √5 minus √2 divided by 3, so 3 is rational number. So you have rationalized this. Now coming to the fourth part, this is 1 by √7 minus 2. So again multiplying and dividing by, so on multiplying, numerator by √7 plus 2, so numerator and denominator, so on multiplying numerator and denominator by √7 plus 2, अपोजिट साइन से ही मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस विल बी √7 plus 2 डिवाइडेड बाय √7 minus 2 and √7 plus 2, so this is again a plus b, a minus b, so this is a square plus b, a square minus b square, so this will be √7 whole square minus 2 square, so this will be √7 plus 2 divided by 7 minus 4, so this is √7 plus 2 divided by 7 minus 4 is 3. So now we have rationalized the denominator. So with this we have completed our exercise 1.5. Thank you. Okay students, आई होप अभी तक हमने जो भी पढ़ा आपको समझ में आया होगा। इन केस अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे एपिसोड्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी रेफ़र कीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे से सॉल्यूशंस ला सकते हैं। ओके, टेक केयर, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।